آج کا حوالہ ہے متی کی انجیل 12 باب 22ویں آیت سے 37ویں آیت، یسوع اور شیطان۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج تیرے حضور میں آئے ہیں تیری عبادت کے لیے، کلام سیکھنے کے لیے، کلام کی بات سمجھنے میں مدد فرما اور اپنانے کے لیے بڑی برکت دے، تاکہ کلام کی خدمت کرتے ہوئے خدا کا جلال ظاہر کرنے والے خادمہ بن سکے، یسوع کے نام میں آمین۔ حوالہ ہے آج کا متی کی انجیل 12 باب 22ویں آیت سے 37ویں آیت تک۔ متی کی انجیل 12واں باب 22ویں آیت سے 37ویں آیت۔ اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی، اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فریسیوں نے سن کر کہا، یہ بدروہوں کے سردار بال-زبول کی مدد کے بغیر بدروہوں کو نہیں نکالتا۔ اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔ اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اور اگر میں بال-زبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ بس وہی تمہارے منصب ہوں گے۔ لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے، جب تک کہ پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے، پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا۔ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ پھکیرتا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اس سے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا، کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اے سام کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی
बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रासबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आज के कलाम में खुदावंद को क्या करार दिया है? यीशु ने क्या किया आज के कलाम में से? बदरू की वजह से क्या हुआ? बदरू की वजह से उस आदमी को क्या हुआ? गूंगा हो गया और अंधा हो गया। बदरू की हरकत से अंधे हैं और गूंगा है। यीशु के पास लाया तो यीशु ने उसको अच्छा किया है। तो इसलिए क्या बोलना है इस लोगों ने? नहीं, पहले बोला है क्या ये इब्ने दाऊद है? क्या ये इब्ने दाऊद है? तो यीशु को ना मानने के लिए कोशिश करने वाले फरीसी, क्यों? अपने गुरु से नहीं है ना, अपना नहीं है। यूं समझो हम तो लीडर है, ठीक है, हम लीडर हैं, सारे माहौल को हम कंट्रोल करते हैं। और कोई नया आ गया, कोई नया आ गया तो उसको ठेस पहुंचाने के लिए कोशिश करता है। और नया आदमी अच्छा काम कर दिया तो उसका कोई जवाब नहीं आया, मतलब उसके बारे में अच्छा कहने के लिए दिल नहीं चाहता, इसलिए बोला है अरे यार ये तो शैतान के लीडर बालज़ेबूल के मदद से बदरूओं को निकालता है। समझ में आया? लोगों ने क्या बोला? शायद ये इब्ने दाऊद है। फरीसी ने बोला नहीं नहीं, ये तो बालज़ेबूल के मदद से बदरूओं को निकालता है। यीशु को सुना क्या नहीं सुना? यीशु को नहीं सुना। भाई वो इतना ताकत वाला है, उसके सामने कैसे उसके मुंह के सामने बोलेंगे? नहीं समझे? बाइबल में देखो क्या कह रहा है। 25वीं आयत में उसने उनके ख्यालों को जानकर, समझ में आया? उनके ख्यालों को जानकर, वो तो आपस में बात कर रहे यार ये शायद इब्ने दाऊद है। नहीं नहीं यार, तो ये बदरूओं के सरदार बालज़ेबूल के मदद से बदरूओं को निकालता है। यीशु ये सुना नहीं, यानी यीशु के कान तक ये पहुंचा नहीं, लेकिन यीशु को मालूम। समझ में आ रहा? चुगली ऐसे करता है कि पीछे से करते हैं। हाँ, क्या ख्याल है? उसके बरखिलाफ बोलेगा, उसके मुंह के सामने ही नहीं बोलता। उसके मुंह के सामने बोलेगा तो मुस्कुरा के वो अच्छा ही करेगा, लेकिन बरखिलाफ बोला और यीशु को पता चल गया, उसके ख्याल को मालूम करके क्या फरमाया? अगर शैतान को निकाले, उससे पहले बोल रहा है कोई बादशाही आपस में फूट पड़े तो वीरान हो जाएगा। इस तरह समझाया कि ये बालज़ेबूल के मदद से नहीं, खुदा की मदद से। और तुम्हारे बेटे यानी फरीसियों में भी बदरूओं को निकालने वाला होगा ना।
फरीसियों में भी, तुम्हारे बेटे का मतलब है फरीसियों में भी बदरों को निकालने वाला होगा, वो खुद मुनसब होगा, बताएगा। बदरों के मदद से बदरों को नहीं निकल सकता। फिर खुदावंद ने आगे बताया, मेरे साथ नहीं तो मेरे साथ जमा नहीं होता, वो तो बखेरने वाला है। यानी फरीसियों ने ऐसा काम क्यों किया? बखेरने के लिए, लोगों को यीशु से दूर करने के लिए काम करता है। फिर बताया क्या? आदमी का हर गुनाह मुआफ किया जाएगा, लेकिन किसके खिलाफ? रूह के खिलाफ, रूह कुदूस के खिलाफ कुफर बकेगा तो मुआफ किया जाएगा कि नहीं? नहीं किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? यीशु को पहचानने के लिए हिकमत कौन देगा? यीशु को पहचानेगा, ये नजात दहिंदा है, कौन मदद करेगा? हाँ, रूह कुदूस मदद करता है। रूह कुदूस हमें मदद करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, नजात दहिंदा है, इस सच्चाई को समझने की तौफीक देता है। इतना समझा रहे रूह कुदूस, और समझाने वाले रूह कुदूस के खिलाफ हो जाएगा तो मुआफी हासिल करने का रास्ता ही खुद बंद कर देते। रूह के खिलाफ नहीं होना, मेरे खिलाफ हो सकते हो, लेकिन रूह कुदूस आपको मदद कर रहे हैं मुझे समझने के लिए, तो आप उसको रोकेगा, उसके खिलाफ हो जाएगा, तो मुआफी का रास्ता खुद बंद कर देते हो, इसलिए मुआफ नहीं हो। रूह कुदूस के खिलाफ, क्योंकि रूह के काम यही है। रूह कलीसिया को क्या करता है? पाक करता है। पाक करने के लिए क्या करेगा? यीशु को पहचानने के लिए बरकत दे। ठीक है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को खुदा ने क्या कहा? पानी से बपतिस्मा देते जाओ, जिसके ऊपर क्या उतरेगा? रूह उतरेगा। वो रूह का बपतिस्मा देने वाला है। तो रूह उतरे या नहीं उतरे कैसे पहचानेंगे? भाई रूह को पहले पहचानना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, ये रूह है, रूह कुदूस है। तो सबसे पहले रूह कुदूस को पहचाना किसने? यूहन्ना बपतिस्मा देने ने। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने ही रूह को पहचाना, इसलिए उन्होंने ऐलान किया, देखो ये खुदा का बरा है, जहां का गुनाह उठा के लेके जाने वाला खुदा का बरा है। रूह कुदूस की मदद से यीशु को पहचाना, और रूह कुदूस की मदद को आप कह रहे हो, धक्का दे रहे हो, नहीं आओ नहीं आओ, तो मुआफी का गुंजाइश नहीं होगा। इसलिए रूह के खिलाफ नहीं होना, यीशु यही बता रहे। और बताया जा रहा है, दरख्त किससे पता चलेगा? फल से पता चलेगा। तो आप अपने आप को परखे, जांचे कि मेरे पास कौन सा फल है। समझ में आ रहा है? झगड़ा किया तो झगड़े का एक माथे पे आ गया झगड़ा। ठीक है। अक्सर मैं देखता हूं ना, बाहर अनाया जावेद खेत के बाहर खड़े होती है। क्यों? कोई हरकत किया होगा, टीचर ने बोला बाहर खड़े हो जाओ। अक्सर बाहर खड़े रहती। तो इसका मतलब है उसके माथे पे हो गया ये तो शरारत, नोती। हाँ, कौन सा फल लाते हो? ये बाहर खड़े वाले बनती है या अंदर बैठे पढ़ने वाले बनती है?
चीटिंग करते हुए पकड़ गए तो चीटिंग का एक फल आ गया। कौन सा फल कमाते? ठीक है, आपस में झगड़ा किया, शिकायत लेकर आए, इन्होंने झगड़ा किया, हाँ ये झगड़ने वाला। कोई अच्छाई का फल तो होना चाहिए, क्या ख्याल है? किसी को मदद की, कल शाम को आई जरूसा, थोड़ा सा जख्म हुए, इसके लिए सनी प्लास्टर देना। मैंने कहा नहीं है, सही है, रहने दो। जरा सा तकलीफ होगा, सनी प्लास्टर दो। हाँ हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी दिया हुआ सदब वो अपने ताया के हाँ जाकर सलाम करने के लिए गए। कल आने समझा हमने, कल आएगी, नहीं आई। मैंने फ़ोन करके पूछा क्या हुआ, तो गाड़ी खराब हो गई इसलिए आने में देर हो गई। सुबह आऊँगी। खुदा की खिदमत में हम कौन सा फल लाते हैं, उस फल के जरिए से क्या होगा पहचाना जाएगा। चीटिंग करेंगे, चीटिंग का फल आएगा। अच्छा काम करेंगे, अच्छा फल आएगा। या आज के भावन में बताया जा रहा है क्या, 36वें आयत में, मैं तुमसे कहता हूं कि जो नकमी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। अदालत के दिन क्या होगा? हिसाब देने का दिन। हिसाब कौन देगा? खुद देना पड़ेगा, खुद। मनसब पूछेगा तुमने ऐसा क्या क्यों किया, ये खुद जवाब देना होगा। खुदा सब कुछ जानता है। आज के हवाले में देखे ना, यीशु के कान तक वो बात आया ही नहीं, लेकिन यीशु जानता है लोग ये बात कर रहा है। तो इस तरह सब कुछ जानने वाले मुनसफ है, उसके सामने बहाना नहीं चलेगा, सफाई नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। सीधी सीधी बोलना पड़ेगा, हाँ मैंने ये बात की है, मैंने ये काम किए। इसलिए क्या करना होगा? नेकी करना होगा, खुदा की मर्जी के मुताबिक काम करना होगा। तो खुदा की मर्जी के मुताबिक काम करने के लिए क्या करना होगा? खुदा की मर्जी को तलाश करना होगा। पहले ढूंढो खुदा की मर्जी, उसकी बादशाही, उसकी रासबाजी। ढूंढो, पाओगे। क्या ढूंढोगे? खुदा की मर्जी। खटखटाओ, क्या खटखटाओगे? खुदा की मर्जी। ठीक है, समझना चाहिए अहम चीज़ क्या है। खुदा की मर्जी है। मेरी जिंदगी में खुदा की क्या मर्जी है। हाँ, कल आई थी कौन? लंच करने के वक्त में, झूले ले लूं सर जी, झूले ले लूं। मैंने कहा ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो, इतना बोलते रहते हैं, फिर भी झूले ले लूं, झूले ले लूं। ट्यूशन पढ़ने के लिए तैयार रहना, वो हैं करके चला जाता। पढ़ाई की तरफ ध्यान होना चाहिए ना। 4-5 दिन छुट्टी दिए और इतवार को रात को याद आ जाता है होमवर्क है, होमवर्क पूरा नहीं हुआ, अभी होमवर्क करना है। 3-4 दिन ऐसे खेलते रहे और सुबह स्कूल जाना है, अभी याद आया होमवर्क है। अच्छा फल लाने वाले हम सब बन जाए
ठीक है, यीशु और शैतान। बादशाही यहाँ है 22वीं आयत से 32वीं आयत तक। यीशु एक बदरू गिरफ्तार आदमी को शिफा देता है जो ना देख सकता था ना बोल सकता था। लोग सवाल करने लगते हैं कि क्या यीशु मसीहा हो सकता है, जबकि फरीसी यीशु पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो शैतान की ताकत से बदरूहों को निकालता है। यीशु उनके इल्ज़ाम की तरदीद करता है और ऐलान करता है कि खुदा की बादशाही आ गई है। नाबीना और गूंगे आदमी को शिफा देने का यीशु का अमल सिर्फ हमदर्दी नहीं बल्कि एक मुकाबला भी था। यीशु ने वो बहाल किया जो इंसानियत के गुनाह की वजह से खराब हो गया था और उसकी बादशाही के आगे बुराई भाग गई। फरीसियों की यीशु की मुखालफत उसकी बादशाही की पेशरफ्त को नहीं रोक सकी और आज भी खुदा की बादशाही आगे बढ़ रही है, क्योंकि यीशु सबको जो उस पर ईमान लाते हैं गुनाह की बादशाही से आज़ादी देता है। आपके ख्याल में फरीसियों ने यीशु को इतने शानदार काम करने के बाद भी क्यों मुस्तरद किया? कौन सी चीज़ आपको याद दिलाती है कि खुदा की बादशाही वाकई आ गई है? दूसरा हिस्सा है दिल के अल्फाज, 33वीं आयत से 37वीं आयत तक। फरीसियों के अल्फाज के जवाब में यीशु सिखाता है कि जैसे दरख्त की खूबी उसके फल से जानी जाती है, वैसे ही इंसान के दिल की बात उसके बोले हुए अल्फाज से मालूम होती है। अच्छा इंसान अच्छे दिल में महफूज भलाई से अच्छे अल्फाज बोलता है और बुरा इंसान अपने दिल में मौजूद बुराई से बुरे अल्फाज बोलता है। यीशु खबरदार करता है कि हर शख्स को खुदा के सामने अपने बोले हुए अल्फाज का हिसाब देना होगा। हमारा बोलना जाहिर करता है कि हमारे दिल में क्या भरा हुआ है। लापरवाह अल्फाज गुनाह को जाहिर करते हैं, जबकि मेहरबान अल्फाज खुदा की रूह से शक्ल पाए दिल की अक्कासी करते हैं। जब मसीह हमारे दिल के तख्त पर है तो हमारा बोलना उसकी अक्कासी करता है। जिंदगी देने वाला, सच्चाई वाला और फजल से भरपूर। गुज़श्ता चंद दिनों में आपने किस किस्म के अल्फाज बोले? ये आपके दिल के मुआद के बारे में क्या जाहिर करते हैं? दुआ करें। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं हमारे ज़ुबान को परखने के लिए, जांचने के लिए मौका दिया है। खुदा की पाक मर्ज़ी से होने वाले काम को कबूल करने में बरकत दे, ताकि रूह के मुआफ़िक चलने वाले बन सके, ना कि रूह के खिलाफ हो। रूह कुदस की रहनुमाई को हासिल करते हुए अच्छे फल लाने वाले बना दे, ताकि काम चलन के जरिए से तेरा जलाल जाहिर करने वाले तेरे लोग बन सके। यीशु के नाम में। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी से आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोज़ आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर, कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि
क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस का शराकत, रिफाकत और हिफाजत अब सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।